And especially thanks to Dr. Nadeem and Altaf Chima Sahab for inviting me here, and whole of the Doctor's Con. And sorry for a bit of delay that you noticed here. And usually that is part of technology, you know. So I was invited for this talk. And the talk was excellence through prioritizing our self-care. Perhaps we talk for, these 2 or 3 days, we talk for excellence. We talk for, various studies. We talk for the patients, we talk for the health, we talk for the health care. But as myself, we have noticed that we talk minimally for our own self-care. Thank you. Assalamu alaikum. So, in this very brief session, we are going to talk about ourselves. How can we achieve the excellence? And it's, at the same time, we are providing our own self-care. So that was my topic. This has been my workplace for more than a decade. And many of us, we recognize this is Allied Burn and Reconstructive Surgery Center, where I worked, more than 11 years as Professor of Plastic Surgery. As Dr. Nadeem and Altaf Sahab, he was telling us, this is my specialty, plastic and cosmetic surgery. And when you talk about plastic surgery, definitely burn treatment, that is, part and parcel of that. And above that, during these 2 years, I'm also having this office, that of Pakistan Burn Association. This is additional responsibility. And before joining this, brief of 1 or 2 slides about, introduction. Before joining this very department of plastic surgery at Faisalabad Medical University, these are 4 of, plastic department that we really established here at Lahore. One was at PGMI, and then I joined to SIMS, Services Institute of Medical Sciences, we all know. Then was a brief tenure of, 3 years at Wabda Teaching Hospital, where we established the first ever burn center for the Wabda people across Pakistan. We established that very first, burn center. Then for a brief period at LGH, and now it's more than a decade that I've been serving, there at Faisalabad Medical University, and there we established the second burn center. This was, one of the 3 burn centers. This simultaneously came up in Pakistan. One was at Multan, other, very well at Jinnah Hospital, Lahore, and third one was mine. Why am I standing here? Because when I'm telling you about my profession, about my specialty, that of plastic surgery, I feel myself blessed one, that I had a parallel, passion, dedication for the medical education. And that, role of medical educationist, that brings me here. And in that, that very field, we have been, I have been learning. It's not that I have been teaching there. It's not that I have been facilitated here. All these opportunities, they are for learning, you may learn, standing here, and we may learn while we are sitting there. So these are various areas where we, usually talk about, as Dr. Nadeem is telling, vast area of communication skills, and that's basically for our doctors who are, who are opting the post-grad, specialization, this is mandatory for them. And then for, role as master trainer for the supervisors, we do talk about, supervisory skills, about assessment of competence, medical education planning and assessment. And further, these are 3 or 4 areas where, we do talk in the corporate sector and various other institutes. That's why we're standing here. Well, while I, 2 days back, I was looking at the topic that was allocated to me. I was wondering that isn't it the balance that we have to create and that I have been asked to speak on. And we have to balance these 2 things. Once I'm, working for the excellence in my profession, I have to take my self-care as well. And you see, this balance
That's principle of art, isn't it? That may be a hobby. That may be some other, say, activity, or it may be walking on this rope or walking on the fine rope of life. We need this balance. But as you can see that this showing this balance over here, it's quite easier. May not be easier over here. And all of us, we have been struggling, through our professional life, and we see that this, balance, that may not be very easy to, opt or adopt. But most of the time, we look for the excellence. And self-care is on, far ends. How come? If you just look at your poster, that we are displayed over here, we are talking about the excellence, gateway to excellence. So perhaps this is something very important. But mind you, this excellence is important not only for my professional life, but for my personal life as well. And today, we are going to take up both these excellence. Excellence in my professional life, excellence in my self-care. And what is excellence? It has been, defined way earlier by Aristotle. We are what we do repeatedly. Therefore, excellence is not an act, but it is a habit. It is a habit. So, for me, excellence is a habit. How do we make this habit? Many of us, we know who this man is. You can see the insignia. Anyone who knows this person? G. Sir. Isn't it, this one, this fellow? So, this person, he is Sergei Bubka. What is special about him? The thing special about him is that he broke his own record for 35 times. And he took this height from 5.85 meters, height, to 6.14 meters. And this record remained there for 36 years. And he himself broke it for, 35 times. Why? Because it was just a habit for him to make a record and to break a record and set a new record. Who knows this fellow? All of us, we know this fellow. Isn't it? Jahangir Khan. 6-time World Open, 10 times British Open. And just look at the figure. 555 consecutive matches where he was unbeatable. I may show you another interesting story. He lost the gold medal by a few seconds in 1968. Mike Andrew Spitz. But in 1972, look at the revenge that he took. He earned 7 golds. और इसमें मजे की एक स्टोरी सुनाई जाती है. When he was, at the stage, some, reporter, he asked that this is your lucky day. And the story that he told was amazing. He said, gentlemen, come on here. He called him on the stage and he told him the truth behind that success story. He said, look, for these 4 years, from 1968 to 72, I was on an average, I was in water for 10 hours a day. That was my struggle. That was my habit. That made me win this, gold medals. And that record, again, that remained there for 35, 36 years. But then again, look at another person, Michael Phelps. We are talking about the Andrews. Look at this fellow. He came up with,
8 gold medals in one Olympic. मैं यूजुअली ये शेर पढ़ा करता हूं कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। आगे तो आपको पता ही क्या कह रहे हैं मुनीर साहब। जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना, आज के बाद कोशिश कीजिएगा इस शेर को मेरी वजह से पढ़ा करें। आदत ही बना ली है तुमने तो सईद अपनी। इसमें नाम अपना फिट कीजिएगा। जिस शहर में भी रहना, बस छाए हुए रहना। उकताए हुए क्यों रहना यार, काम ही करना तो कोई अच्छा काम कर लो। और ये कहां से जनरेट कहां से करता है? दिस मस्ट बी द मोटो। शिकवाए जुल्म के शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो यहां जो आप कह लीजिए कि सिस्टम के अपने इर्द गिर्द के लोगों से सताए बैठे होंगे, वो कहते हैं हम क्षमा तो जलाते हैं, क्षमा बुझा बड़ी जल्दी की जाती है। तो उनके लिए भी है, उनके लिए आजा जाफरी कह गए ये एक क्षमा बुझाई तो कई और जना डाली, हम गर्दशे दौरान से बड़ी चाल चले हैं। What I mean to say is consistency. I will just quote another example. Who knows what is this statue? What this statue is? Anybody? जी, कोलंबस स्मिथ सर, ये फीमेल है। ये दिस इज सम फीमेल जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकी, फ्लाई यूनिवर्सिटी में जाती रही। इसको यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीमेल होने की वजह से दाखिला नहीं मिला। इसको लंदन इंस्टीट्यूट, रॉयल इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया कपल को, लेकिन मियां को बोलने की इजाजत मिली। इसको इजाजत सिर्फ इस बात पर नहीं मिली कि शी वाज अ फीमेल। और इसने ये जो गाउन पहना हुआ है, जब इसकी शादी हुई, द ब्लू आउटफिट दैट शी वेयर वाज अ ब्राइडल गाउन। ये अगले कुछ साल शी वर्कड इन दैट गाउन एज अ लेबोरेटरी आउटफिट। एंड यू नो हु शी इज? मैरी क्यूरी। जी मैंने लिख दिया, थैंक यू वेरी मच। कंप्यूटर ने आपको लॉक कर दिया और आपको कॉपी किया, ठीक है। और इसके अचीवमेंट्स देखिए। 1911, लुक एट द फिगर्स, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, मैक्स प्लैंक, एंड शी इज द ओनली वन लेडी who is sitting there in 1911. Mind you, in 1903, she was refused to allow appearance in the Royal London Institute for speaking, just because of the reason that she's a lady. But then look at the struggle. She's the only lady who has won 2 Nobel Prizes, one in physics and other in chemistry. And you know, look at the level of the effort that she put in the same institute that earned after her earned 4 other Nobel Prizes. So you have to be consistent. कैसे? मैं आपको एक बहुत बड़ी जो है, एक आपके साथ, you may say that all these examples they are from the West. Why not from the Pakistan? You know the example from Pakistan. Who knows this lady? Ruth Howe, you know. And she is the lady behind who was the reason to eradicate leprosy from Pakistan. And look at the age she landed here in her late 20s, and she died here. And she is the only lady which has been, given state funeral on her death. She is the only lady. Who does not know this fellow? And look at the hard work that he has put in. What's the message here? Am I showing you the slides only? No. Message is very clear. If you want to excel, I'm talking about excellence. If you want to excel, there's only one thing in your armamentarium, and that is the hard work. Nobody will stop you from that, that arm. We need to be consistent. We need to have hard work. Professor Amiruddin, अभी मुझे डॉक्टर जफर जो है वो रस्ते में मिले थे कि जी आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एट अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, सम few kilometers from here. And look at the gratitude that we pay to him. He says that secret of his success as a medical educationist lies in the fact that he practiced in his life what he taught to his students.
अगेन प्रैक्टिस। मैंने आपको डॉक्टर से मिसाल दे दी, मैंने आपको स्टूडेंट से मिसाल दे दी। अब इससे बड़े क्लास की बात एक नोट कीजिएगा, जो मैंने भी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ी और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हु इज दिस फेलो? जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। I always believe that when I stand here, people, they are more intelligent than me who are sitting in the audience. And that's why I say that I do not come here to deliver lectures. I come here to be more knowledgeable. ये वो चीज है जहां से मिले ले लिया करें। मैं बड़ी कंजूसी का मुजाहरा करता हूं, मैं लेता नहीं, मैं कहता हूं जी मैं तो उस्ताद हूं खुद, मुझे कौन सिखाएगा। लुक एट माय नेक, लुक एट माय बॉडी लैंग्वेज। अपनी और मेरी बॉडी लैंग्वेज जो बना लीजिए सीखने वाली, लेने वाली, समेटने वाली। गैरी सोबर जो है, ऑन 31st of August 1968 इसने 6 बालों पे 6 छक्के मारे थे, हम सबको पता सर गैरी सोबर्स। और इसके बाद ये रिकॉर्ड 8 विकेट कीपर्स ने कायम किया। आपको एक और बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड दिखा देता हूं एल का। 2017 में on every ball of his over he took a wicket, 6 wickets in an over, and that led to the term perfect over. Perfect over, 1 wicket on each and single ball. मैं आपके साथ ये शेयर क्यों कर रहा हूं? These are not my words. Just look at these words. These are not my words. कहने लगा दुनिया भर के रिकॉर्ड होल्डर्स और कामयाब लोगों का एक ही वस्फ है, उनके बारे में एक ही बात कहा जाता है कि ये लोग सही वक्त पर सही जगह होते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेरा कभी सही वक्त नहीं हुआ? क्या मैं सही जगह पे खड़ा नहीं हो सकता? सिर्फ इस एक हैबिट को बनाइएगा। अगला जुमला देखिए, ये भी मैं कोट कर रहा हूं, दीज आर नॉट माय वर्ड्स। कहने लगा आप जिंदगी में कभी भी मायूस होकर अपनी फील्ड ना छोड़ें, घबराना नहीं, घबराना नहीं। आप बस डटकर खड़े रहिए, कामयाबी आपकी तरफ चल कर आएगी। वो क्या किसी अजीम फिलासफर ने कहा था कि आप उस वक्त तक नहीं हार सकते, कब तक जी? जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। मेक इट अ मोटो, मेक इट अ मोटो। आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली आपको नहीं समझा रहा, ये मैं अपना सबक जो पक्का करने लगा हूं, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे। क्यों सर? चिमा साहब, फवाद साहब, जवाद सर, साथ रहेंगे। हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, और हमेशा ए फॉर एप्पल बताते हैं। टुडे वी गो फॉर आवर ब्रीफ सेशन इन न्यूमरोलॉजी। Every word, every letter in alphabets has been allocated a number, starting from A to Z, 1 to 26. And we saw in previous slide that success is 100%. Excellence, if I'm putting and I'm getting my 100%. Let's see what makes 100%. Is it hard work? If we go according to numerology, see hard work makes only 98. And what is else? Knowledge? It's only 96%. इसके बारे में क्या ख्याल है? But look at the figure. It's only 54. Again the luck. Look at the figure. Look at the money. These are having the ever lowest figures. But then we start thinking that is it leadership? It is near 100%, but it's not 100, it's 97. Then what's 100% for? It is this. You can try it yourself. सर अपना एटीट्यूड बना लीजिए। I'm here to win. और मैं अपनी वर्कशॉप में कहा करता हूं तो बड़ा क्या कहता है कि मैं हूं ना। मैं पूछता हूं क्यों, हंस क्यों रहे हो? कहते सर वो शाहरुख खान। तो मैंने कहा मैं उससे कम हूं। अच्छा, इससे भी हंसी पड़ती है। तो मैंने कहा आप में क्या कमी है? वाई कांट यू बी मैं हूं ना, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेशेंट्स, फॉर पीपल अराउंड यू। ये बनना सीखिए। अगर टाइम हुआ चीमा साहब तो हम इस एटीट्यूड को लास्ट की 5 या 6 स्लाइड में विदाउट वर्ड्स
मैं वो आपको कन्वे करूंगा अगर हमें टाइम मिला। वी हैव बीन, जो जल्दी से इधर आ जाओ। We have been talking about the health, about the profession, about the excellence. आइए आपको थोड़ी सी पाकिस्तान की सैर करवा देता हूं। This is November, autumn, and I love these colors. I traveled to Hunza, और सर ये सिर्फ 17 घंटे की ड्राइव थी। किसी ने पूछा अकेले थे, मैं कहा मेरे साथ 4 कैमरे थे, 4 कैमरे रखे थे, कोई ट्राइपॉड पे है, कोई हाथ में पकड़ा हुआ है। मैं उस सफर की आपको 4 या 5 स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा। इनका नाम मैंने रखा हुआ है कलर्स, एंड लुक एट द कलर्स। आपने गाना सुना होगा, आग लगा दी आग, वो ये आग है सर। अपनी ये वाली आंख खोल के देखिए, आप इसके लिए लफ्ज आग भी बोलेंगे, आप माशाल्लाह भी बोलेंगे, सुभान अल्लाह भी। सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए और यहां पे सोच जो है वो चाहिए। राकापोशी, आप इसे गर्मियों में जाते हैं, देखते हैं, यहां लश वाइट वाटर आपको मिलता है। मैंने इसे नवंबर में जो है इसको क्रॉस किया था। लुक एट द अदर साइड, एंड नाउ वी आर रीचिंग अताबाद। अलाहाबाद से पहले इलाहाबाद, और ठीक मेनी ऑफ अस वी हैव बीन टू हुंजा। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी सैर करा दीजिए, बजाय इसके कि सख्त बातें जो हैं, बैलेंस की बातें, प्रायोरिटाइजेशन की बातें करते रहे। तो लेट्स टॉक अबाउट, एज वी सेड दैट वी ऑलवेज लुक फॉर एक्सीलेंस फर्स्ट, वी सेंटर आवर टारगेट एट एक्सीलेंस, वी नेवर टॉक अबाउट सेल्फ केयर। तो क्वेश्चन अराइजेस, ये सेल्फ केयर हो कैसे? तो एक 15-20 मिनट के सेशन में हम सेल्फ केयर को होली सोली कवर तो नहीं कर सकते, बट आई एम गोना टॉक यू टुडे, आई एम गोना टॉक यू वन प्रिंसिपल ओनली, एंड इफ वी ऑफ दैट, वी वर्क ऑन दैट, तो हम इस गोल के करीब तर हो जाएंगे। एंड दैट प्रिंसिपल इज दैट ऑफ टाइम मैट्रिक्स। हम में से कईयों को टाइम मैट्रिक्स का पता होगा, जिन्हें पता है जरा मुझे शो ऑफ हैंड कर सकते हैं। चलिए, अगर पता नहीं है तो आज हम ये पता करने जा रहे हैं कि व्हाट इज टाइम मैट्रिक्स। आप देखिए कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, अर्जेंसी की और इंपॉर्टेंस की। तो आज हम इन दोनों को वेट करने जा रहे हैं, व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसको हम इन 4 चीजों को देखने जा रहे हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल के साथ। Well, as I said, things they can be urgent and very important, or they may be non-urgent and non-important. We will be following this, axis, in the upper axis on the urgent and non-urgent, and the lower axis whether they are things they are important or not. Let's look from this angle now. Usually we do this exercise in, workshops, but I'll try to simplify it. I'm not going to have interaction for that. I would have to come, downstairs. और मैंने चीमा साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जाके वहां बात करिए, लेकिन फिर मुझे अलग माइक लेना पड़ेगा और लोग कहेंगे कि भूख लगी और डॉक्टर साहब हमें बुला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खुद ही बोलता जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। चलिए, अभी तक आपने ऑब्जर्व कर लिया, मैं इंटेंशनली यहां कुछ बोला कि आप देखिए कि हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत अर्जेंट है, वो मैंने यहां आपके सामने नोट की। इट मे बी सम एग्जाम, इट मे बी सम क्वेरी, इट माइट बी सम क्राइसिस, इट माइट बी सम इमरजेंसी, एंड लुक एट द थिंग्स which they seem to be very urgent, but note it down, they are not very important. As if I receive some call over here right now, will that be important? No. I'm delivering, a presentation, interactive session here, some meetings, some reporting. Similarly, look at these, things. These things, they are very important for my life. My planning, my problem prevention, my self-development, the thing that we are talking right now. My healthy quality relaxation, my inter-family relationship building, interpersonal communication. These are not urgent, but these are always very important. Look at few things which neither they are urgent and nor they are important. And now look at the time that we are spending here in this, sphere. So how
how to manage these four quadrants. Look at these quadrants. If we name them quadrant 1, which is very urgent, very important. Quadrant 2, which is not very urgent, but it is very important. Quadrant 3, which is urgent, but it's not important. And quadrant 4, which is neither urgent nor important. Question arises कि सर इसके बारे में स्किल बताइए. वेरी सिंपल. देखिए, इसे मैनेज करना सीखिए, इसको स्केड्यूल फोकस करना सीखिए. हमारा फोकस वो यहां होता है, जहां मैनेज करना होता है, यहां हम फोकस रखते हैं. और इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वी आर गोना कवर इट इन नेक्स्ट स्लाइड. यहां पे जो है इसको अवॉइड कीजिए. लंबी टेलीफोन कॉल्स, लंबी वो मीटिंग जिसका मुझे कोई फायदा नहीं, लंबी रिपोर्टिंग जिसका कोई फायदा नहीं है. एंड हियर लिमिटेड माय टिकटॉक, माय टाइम ऑन फेसबुक, माय टाइम ऑन सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया. करना कैसे सर, वो तो बताइए. डू इट. क्वाड्रेंट 1. क्वाड्रेंट 2, स्केड्यूल इट. सर इसमें क्या करें, इसे डेलीगेट कर दीजिए, किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह के जाके कराओ. इसको क्या करना है, इस क्वाड्रेंट को अपनी टाइम मैट्रिक्स में से डिलीट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा. और इनके अब नाम रखिए, दिस इज नेसेसिटी, जो सामने है उसको तो आपने करना है, बट सी दिस इज क्वालिटी, दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज डिसेप्शन एंड दिस इज वेस्ट ऑफ माई टाइम. अगर आपने सेल्फ केयर करनी है तो ये स्लाइड जो है, ये प्रोग्राम, ये आपने कैसे इसे ऑप्ट कैसे करना है, कैसे लेके चलना है. ट्राइंग टू मेक इट मोर सिंपल. जस्ट अ फ्यू सेकंड, अगर तस्वीर ले ली जाती है. हमने स्ट्रेटजी इसमें है क्या, हम नेम कैसे करते हैं, हमने एक स्लाइड पे से आपके लिए कर दिया, सो दैट थिंग्स आर इजियर फॉर यू. आप इसे एक स्लाइड को ओपन करते हैं और आप इसे देखते हैं और आपको स्ट्रेटजी मिल जाती है, आप इसे प्लान करना भी शुरू कर देते हैं. दिस इज हाउ वी डू इट. स्टार्ट फ्रॉम क्वाड्रेंट 1, गो टू क्वाड्रेंट 2 एंड स्टॉप देयर. क्वाड्रेंट 3 को लिमिट कर दीजिए, क्वाड्रेंट 4 को एब्सोल्यूट कर दीजिए. That is how you do it. And mind you, this time matrix, this concept, this is nothing new. This has been very old and very well practiced skill. I've been doing it, for more than a decade now, and I've been telling to my colleagues now. As I told you, this is not something new. This is called Eisenhower's time matrix. And you know who Eisenhower was? He was, sorry, please. जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. मैंने तो पहले कहा था कि सर मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं. दिस इज वे ऑफ थिंकिंग. इसको ऑप्ट कीजिए, इसको अडॉप्ट कीजिए. You'll make yourself bigger. Always try to learn. Sir, बिल्कुल आपने सही कहा. He was American president, perhaps 34th American president. And this matrix is after his name. And before, serving 2 terms as president of America, he was commander of military. And then later he came into politics. अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा ब्रिलियंट जो असूल उसने टाइम मैट्रिक्स के बाद जो बहुत अच्छा असूल मेरे और आपके लिए रख दिया, उसने बड़ी सादा सी बहुत बड़ी बात बड़ी सादा लैंग्वेज में कह दी. वो क्या थी, उसने कहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट. वो इतना अर्जेंट कभी नहीं हुआ करता. जो इंपॉर्टेंट है वो अर्जेंट नहीं हुआ करता, और जो आपको बहुत ही अर्जेंट है वो कभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हुआ करता. अब जो है इसे टाइम मैट्रिक्स को दोबारा से हम देखते हैं कि ये हमने क्वाड्रेंट बनाए थे. देखिए, अगर आप अपना क्वाड्रेंट 1 वो बड़ा करते हैं, हाँ जब प्रॉब्लम आएगी, क्राइसिस आएगा, डेडलाइन आएगी, मैं उस वक्त देख लूंगा, मैं हूं ना. करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एनीबॉडी हु कैन टेल मी. उसके बाद प्रॉब्लम बड़ी एविडेंट है. प्रॉब्लम ये है, इससे हम बोलते हैं अर्जेंसी एडिक्शन. एंड माइंड यू, इसके साथ अगर आपको प्रॉब्लम कोई भी याद ना रहे तो एडिक्शन के साथ जो भी आप प्रॉब्लम्स देखते हैं वो इस क्वाड्रेंट में ज्यादा देर जो रहते हैं उनके साथ होगी. स्ट्रेस होगी, बर्नआउट होगा,
एंजाइटी होगी, बर्नआउट का प्रॉब्लम आएगा, ब्रेकडाउन का भी आ सकता है। तो इस कोशिश कीजिए कि अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हैं तो अपनी चीजें को इस क्वाड्रेंट 1 में ना फॉल करने दें। सर करने कहां चाहिए, वो फॉल कहां करनी चाहिए? इट मस्ट बी हियर, क्वाड्रेंट 2। You must have got plan, you must have vision, you must have balance, discipline, control. हम इसे एक मतलब फिर दोबारा देखेंगे। और माइंड यू, दिस क्वाड्रेंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मुझे और आपको यहां पे आना है अगर हमने स्ट्राइव कर रहे हैं, अगर आपने सेल्फ केयर कर रहे हैं। एंड एज सेड ऑलरेडी, क्वाड्रेंट 3 दिस इज डिसेप्शन, क्वाड्रेंट 4 इट इज वेस्ट। अब मैंने दोबारा आपके सामने रख दिए चारों क्वाड्रेंट, और इसमें से हमने चूज कौन सा किया जी? स्ट्राइव किस पे करना है? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट पे नहीं, हमने सेकंड पे, स्टार्ट हमने फर्स्ट पे करना है। कंसंट्रेट जो करना है, जो मैंने लफ्ज फोकस कहा था पिछली स्लाइड में, अब जाके जो आपने फोटोग्राफ ली थी, जो आपने फोकस करना है वो क्वाड्रेंट 2 है, दिस वन। और सेल्फ केयर करनी है तो फिर वही होगी। अच्छा, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेल्फ केयर में प्लानिंग किस चीज की करेंगे? एनीबॉडी? इसमें बहुत बड़ा कैच है। अब यहां पे एक्सीलेंस को लेके आइए, रिवार्ड को लेके आइए, सक्सेस को लेके आइए। प्लान आपने यहां का नहीं करना। प्लान जब आपने यहां का करना है तो लाइफ हियर आफ्टर हम उसको भूल जाते हैं। ये मैं स्लाइड जब बना चुका तो मैंने सोचा कि प्लान की क्या बात करूं अपने साथ, यहां ऑडियंस के साथ क्या बात करूं। तो यहां जब आपने प्लान करना है तो आपने लाइफ हियर आफ्टर वो करनी है। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मेरे दोस्त ने करके मुझे दिखाई, मैंने उसके साथ ये शेयर किया था। वैसे जो लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे हैं वो जानते हैं कि जब मैं बोलता हूं कि मेरा दोस्त, तो वो दोस्त कौन होगा, वो जवाब सबको ही पता है कि वो दोस्त कौन है। उस दोस्त ने कहा कि तूने ये जो क्वाड्रेंट 2 था इसको कैसे किया? उसने कहा यार मैं तुम्हें सही बताता हूं। मैंने इसमें नमाज को रखा, मैंने इसमें देखा कि मैं अपना कितना टाइम अपनी एक्सरसाइज को दे रहा हूं। मैंने इसमें यह देखा कि डॉक्टरी के साथ साथ मैं अपनी फैमिली, अपने खानदान, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ कितना जुड़ा हुआ हूं, मैं दोस्तों के साथ कितना जुड़ा हुआ हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है, मैंने दुरूद की हैबिट यहां रखी। तो यार वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट तो नहीं है, मैं 24 घंटे में किसी वक्त भी पढ़ लेता हूं। मैंने कितनी मरतबा पढ़ा, मुझे सबसे ज्यादा उसकी बात ने यहां पे अमेज किया। और आगे चैनल पे देखिएगा वो दोस्त कौन है। ठीक हो गया? तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, सेल्फ केयर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इट्स हियर। ठीक हो गया? एक मतलब फिर आपको ये दिखाते हुए, ये कुछ स्लाइड हैं जो हमने इंटरनेशनल किसी जगह पेपर प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा जी चीमा साहब आपने प्रेजेंट करेगा, पाकिस्तान का तारफ भी करवा दीजिएगा। तो मैंने उसमें से कुछ स्लाइड जो है वो मैंने ली है। मैंने कहा जी माय कंट्री इज लैंड ऑफ रोड्स, तो उसमें एक रोड मैंने ये दिखाई थी। मैंने वो स्लाइड तो नहीं मैं शेयर कर सका। लुक एट द जिगजैग, ये बाबू से आप उतरते हैं तो उसके बाद जन्म आती है। और ये रोड कितनों ने देखी हुई है? ये कौन सी रोड है? दिस इज देसाई, दिस इज देसाई। फिर मैंने वहां पे मैंने कहा जी माय कंट्री इज लैंड ऑफ रिवर्स, और आप देखिए स्वात भी है, उसमें सिंध भी है, और दिस इज द प्लेस जहां पे आपका द्यामिर बादशाह बनने जा रहा है। और क्यों बनने जा रहा है वो आप देख लीजिए। जस्ट रेज द ब्लॉक हियर, आप इसे ग्रेडियंट दीजिए और उसके पीछे देखिए कि कितना बड़ा रेजरवायर है। यहां दिस इज द प्लेस वेयर सिंध पास थ्रू दिस नैरो वैली, इसलिए यहां पे द्यामिर बादशाह जो है बनाया जा रहा है। अगेन सिंध कौन सा दरिया जी? सर आप ही बता रहे हैं। दिस इज नीलम, नीलम रिवर, नीलम अगेन नीलम। लेकिन दिस इज बट उसके आगे जाके उस एरिया में एनीबॉडी, दिस इज कुन्हार। एंड देन आई सेड माय कंट्री दिस इज लैंड ऑफ लेक। फिर मैंने उन्हें महूडन भी दिखाई, मैंने उन्हें लेक सैफला भी दिखाई, उसमें सैफल लुक भी थी। ये बात अलग है कि वहां पे पकौड़े बनाने का ख्याल है तो प्लास्टिक सर्जन जो है वो छील कर नहीं रहा था।
तो लाइफ को एंजॉय कीजिए जहां आप कर सकते हैं। बीच लेक, श्यूसर लेक, अनदर लुलू सर। और मैंने कहा सर लुक एट माई कंट्री, अपर कुचीरा, यू हैव सीन द शैंग्रीला, दिस इज विद माई ओन कैमरा। और मैंने इसमें कुछ ज्यादा थे, मैंने कहा जी दिस इज लैंड ऑफ पैलेसेस, तो मैंने इसमें जो पैलेसेस थे उनकी एक तस्वीर दिखाई थी। दिस इज द प्रेजेंटेशन कि आपने एक्सीलेंस कैसे आपने अचीव करनी है और आपने जो है सेल्फ केयर कैसे करनी है। इसमें हमने दरमियान में जो वादा किया था, अगर कोई मुझे याद दिलाए तो मैं आगे चलना चाहूंगा थोड़ा सा। एक प्रॉमिस था एटीट्यूड के हवाले से, वो प्रॉमिस क्या था, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कितना मेरे साथ है प्रेजेंटेशन के दौरान, वो मुझे अंदाजा हो रहा है। सर मैंने कहा था, थैंक यू वेरी मच, मैंने कहा था 5 या 6 स्लाइड। अगर आपको एटीट्यूड, आपने काम कैसे करना है नहीं पता चला, 3 दिन की कम्युनिकेशन स्किल की वर्कशॉप करवाने के बाद मैंने सिखाता हूं कि आपने कम्युनिकेशन स्किल कैसे करनी है, लेकिन उससे फिर हरफ कोई नहीं होता। आइए आपके साथ वो 6 स्लाइड शेयर करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि इसका नाम बताइए, स्लाइड का नाम बताइए, इसे कैप्शन दीजिए। बड़े मुख्तलिफ कैप्शन आते हैं। उसने कहा जी गरीब बच्ची, उसने कहा जी तन्हाई, उसने कहा जी दोस्ती, सब कुछ बोलते रहे, लॉयल्टी, और कोई बताइएगा जी, अटैचमेंट सर मैम, इनोसेंस, और कुछ बताइए जी, इजीनेस, रिलैक्सेशन, ठीक, और कुछ बताइए। मैं अगर इसे नाम दूं लेवल, सेल्फ प्रोटेक्शन लेवल, आप हैरान हो गए सर लेवल क्यों? देखिए दोनों के दरमियान डिस्टेंस देख रहे हैं। आप जब लेवल पे आते हैं पेशेंट के साथ, अपने दूसरे फैमिली मेंबर के साथ, किसी कोलीग के साथ, नेक्स्ट चीज जो है लेवल पे जब आप आते हैं तो फिर एक चीज क्रिएट होती है, दैट इज दिस वन। अब सर दोस्ती है, हाथ मिलाया हुआ है, और अगर आप इसे, वो जो हमने कहा था आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, अगर आप इसे आदत बनाएं और आदत को पक्का करें, यहां पे दीज आर नॉट अलाइव नाउ, ये तो स्टफ टॉयज है। जब आप इनके साथ बातचीत करने के मर्तबे पे फायज होते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो ये होती है, नाउ दिस इज स्टोरी टेलिंग। और आप उस्तानी भी देख लें और स्टूडेंट्स भी देख लें, और मैं ये आपको बताता चलूं कि उस्तानी ऐसे क्यों है कि उसका बाप जो है वो भी ऐसा ही था। बाप के साथ तो मुलाकात है या नहीं है, जानते हैं या नहीं, तो बताओ तो सही नहीं यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक, यार कुछ नहीं पता, दूसरा बनो, आप तो सही कर सकते हैं। याद रखिएगा, अप्रिशिएट करना सीखिए। मैं हमेशा जो कहा करता हूं अपनी वर्कशॉप्स में, सेशंस में, अप्रिशिएट करना सीखिए। आप यकीन जानिए कि यहां दिल चाह रहा था, क्लैप भी किया, आधे हाथों से किया, पूरे हाथों से नहीं कर सके। आपको मजे की बात बताता हूं, अप्रिशिएट अगर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले किसको अप्रिशिएट करोगे? अपने आप को करना सीखिए, अपने आप को करना सीखिए। वर्कशॉप में जब मैंने 2-3 मतलब जोर दिया तो मेरा स्टूडेंट था, उसने आगे से थोड़ा गुस्सा किया, कहने लगा सर आप ये तालियां बुझवा रहे, सन मरासियां तो मुंडे बनाना चाहते हो। तो फिर टीचर क्या हुआ जो जवाब में, मैं कहा बेटा जाके पढ़ लीजिएगा और मुझे आपने कल बताना है व्हाट आर 10 बेनिफिट्स ऑफ क्लैपिंग, लेट्स टेक इट साइंटिफिकली नाउ। सर आपको आक्यूपेंचर का पता है, आप थाई फुट मसाज को जानते हैं, आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, ह्यूमन को जानते हैं, द प्रिंट हियर, आप जानते हैं द फुट प्रिंट, उसके ऊपर क्या क्या प्रिंट है, सेम इज द प्रिंट ऑन माय हैंड। एंड व्हेन यू डू दिस, जो टीचर है वो अगर 15 मिनट बाद आपसे क्लैप करवा रहा है, याद रखिएगा वो टीचर है, वो उस्ताद है, उसे पता है कि 10 से 15 मिनट बाद आपको ऊँग आ जाएगी। यहां मैं खड़े होकर नाम नहीं लूंगा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऊँग तो आई नहीं, 2-3 मरतबा आई,
तो उसका एक सादा सा आसान तरीका जो है, जो आप अपने स्टूडेंट को प्रमोट भी करेंगे, बताएंगे भी नहीं, उसे जिगा भी लेंगे, उसे दोबारा से अपने साथ इंटरेक्ट भी करवा लेंगे, दैट इज दैट ऑफ एप्रिसिएशन। उसे अप्रिशिएट और इनकलाब करो अपने लिए। तो कभी भी यहां जो खड़ा शख्स है उसकी मूव सादा नहीं होगी। ठीक हो गया? तो अब जब उस लेवल पर आप जाते हैं तो आप देखिए फिर दिस इज द अचीवमेंट। और ये सेम बच्ची है जो अब आपने नोट कर लिया होगा, दिस इज द लेवल, दिस इज द अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच।